See now, new topic, last topic for the year. छोटू सा topic. Single entry system. दोनों है, पहले explanation है फिर लिखना भी है. See, what is the topic all about? Let's understand the meaning. नित्य आ गया हो. इधर आ जाओ. Okay. See, what is a single entry system? We have already followed a system throughout the year for bookkeeping and accounting. Which system do we follow? Double entry. What does double entry system state? Every transaction has got two aspects. One aspect is debit, the other aspect is credit. The transaction is an exchange, give and take. So one part is give, one part is take, one is receiving the benefit, one is giving the benefit. So one part is the debit part, another part is the credit part. Furniture आया, cash गया. Furniture debit, cash credit. Salary income हुआ, cash गया. Cash credit, salary debit. Salary is receiving the benefit, cash is giving the benefit. Hey. देखो, जेमिन. Yes sir. जेमिन जेमिन. फाइनल अकाउंट खत्म हो गया. उसके लिए आगे. Permanently आगे. यार the torch पे. चलो. Single entry system, now pay attention. Which system do we follow? Normally we follow double entry system. Every transaction has got two aspects, debits and credits. That is the foolproof system of accounting. Everywhere all over the globe you follow double entry system. But there are still many businesses, many small organizations, whether in India or abroad across the globe, which do not have sufficient, either they do not have sufficient knowledge or they don't have sufficient money, time, efforts, whatever. So they do not follow this double entry system. They follow a system which is incomplete. They follow a system which is incomplete. उनको double entry system आता नहीं है, उनके पास time नहीं है, मैन पावर नहीं है मेंटेन करने के लिए, तो आधा अधूरा system से records maintain करता है. That incomplete system is called as single entry system. तो single entry system ऐसा कोई स्पेसिफाइड सिस्टम नहीं है. जैसे डबल एंट्री सिस्टम जो प्रॉपर डिजाइंड सिस्टम टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट अ पर्टिकुलर सिस्टम. सिंगल एंट्री का मतलब क्या है? whenever you do not follow double entry, it's called single entry. समझ आ रहा है? Whenever you do not follow double entry system, whenever you divert from double entry system, it's called single entry. Simple as that. तो सिंगल एंट्री ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं कि ये किया तो सिंगल एंट्री, ये नहीं किया तो सिंगल एंट्री नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जब भी आप डबल एंट्री फॉलो ना करो, सिंपल, इट्स कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम. तो सिंगल एंट्री का दूसरा नाम है सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. उसमें ऐसा इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ हाइब्रिड स्टफ. इट कैन बी एनीथिंग. इसमें आप कोई ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट दे सकते हो. कोई ट्रांजैक्शन का एक दिया है, एक नहीं दिया है. किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली इग्नोर किया है, कच्चा अकाउंट्स, आधा अधूरा अकाउंट्स आपने मेंटेन किया है, देन इट इज सेड टू बी व्हाट? सिंगल एंट्री. सो ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. जब भी आप आधा अधूरा अकाउंट्स मेंटेन करते हो, बराबर डबल एंट्री फॉलो नहीं करते, देन इट इज सेड टू बी व्हाट? सिंगल एंट्री सिस्टम. देन इट इज सेड टू बी सिंगल एंट्री सिस्टम. देन इट इज सेड टू बी सिंगल एंट्री सिस्टम. इज दिस क्लियर? सो नाउ what we are supposed to do in this chapter. अभी बंदे ने रिकॉर्ड्स कच्चा मेंटेन किया है, आधा अधूरा मेंटेन किया, उसको डबल एंट्री नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसको छोड़ तो नहीं सकते, उसका प्रॉफिट्स तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेस कितना भरना है वो पता ही नहीं चलेगा उसको. टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स तो चाहिए, गवर्नमेंट को. तो कहीं से तो शुरुआत हो. तो वी ट्राई टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स ऑफ दिस गाय.
we try to calculate the profits of this guy who has maintained incomplete records. Who has maintained what? Incomplete records. Now, जिन्होंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, उन बंदों का क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप? प्रॉफिट्स और लॉसेस, जस्ट टू कैलकुलेट द टैक्सेस एंड ऑल, जो भी है थोड़ा बहुत कहीं से तो शुरुआत हो, उसको कंपैरिजन में भी काम आए, टैक्सेस वगैरह भी कैलकुलेट हो जाए वगैरह। तो चैप्टर में करना क्या है? सिंपल सी चीज करनी है। जिस बंदे ने डबल एंट्री फॉलो नहीं किया, कच्चा अकाउंट्स मेंटेन किया है, ओके, सिंगल एंट्री बेसिस पे, उस बंदे का प्रॉफिट्स ढूंढना, उस बंदे का प्रॉफिट्स ढूंढना, दैट इज व्हाट इज द मोटो ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अभी ये प्रॉफिट ढूंढने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कन्वर्जन मेथड, एक होता है नेट वर्थ मेथड। एक होता है कन्वर्जन मेथड, एक होता है नेट वर्थ मेथड। ये किसके मेथड बता रहा हूं? उस बंदे के प्रॉफिट्स ढूंढने के। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है? जैसे नाम में लिखा हुआ है ना, कन्वर्जन, यू कन्वर्ट एवरी डैम सिंगल एंट्री इनटू अ डबल एंट्री। हर एक सिंगल एंट्री को आप डबल एंट्री में, मतलब एक इफेक्ट दिया है, जैसे सैलरी टू कैश है, तो कैश में लिखा है बाय सैलरी, सैलरी में नहीं लिखा, तो आप सैलरी में लिख दोगे ऐसा। तो एक इफेक्ट दिया हो तो दूसरा दे दोगे, दोनों इफेक्ट दिया तो वैसे ही रखोगे, दोनों नहीं दिया तो पूरा एंट्री रिकॉर्ड कर दोगे। बेसिकली पूरा परफेक्ट अकाउंट्स बना लोगे। Every single entry transaction, incomplete transaction, you will complete it. It's like fixing the missing parts of a jigsaw puzzle. अब पजल है, दिया हुआ है आधा अधूरा, उसको फिलअप करोगे और प्रॉपरली डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर दोगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन, एंड यू विल मेक योर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, एवरीथिंग परफेक्ट। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज सिंगल एंट्री का कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन में everything is converted into a double entry system. Is this clear? And proper final accounts you'll be able to prepare. दूसरा जो मेथड होता है, that is called as net worth method. अभी आपको ये कन्वर्जन मेथड है नहीं, ये थियोरी में है, प्रैक्टिकली आपको इसके सम्स नहीं है, ये CM है। Now the second method is called as net worth method. क्या बोलते हैं इसको? net worth method. ये आप अभी स्टडी करने वाले हो 11th स्टैंडर्ड में। इस मेथड में क्या होता है, ये भी आप यूज कर सकते हो। बेटर वाला कौन सा? कन्वर्जन वाला बेटर है, सॉरी, कन्वर्जन इज ऑलवेज बेटर, कि प्रॉपर डबल एंट्री में कन्वर्ट हो गया। नेटवर्क में आप डबल एंट्री में कन्वर्ट नहीं करते हैं, एक जुगाड़ू तरीके से उसका प्रॉफिट ढूंढ लेते हो, शॉर्टकट तरीके से, ओके, शॉर्ट एंड स्विफ्ट। अप्रोक्सीमेट आएगा, इसमें भी अप्रोक्सीमेट आएगा, इसमें भी अप्रोक्सीमेट आएगा, बट इसमें थोड़ा बेटर है क्योंकि बहुत सारे अकाउंट, सब डेटा मेंटेन होता है, कंपेरिजन आगे पॉसिबल है। इसमें बहुत सारा अकाउंट डेटा मेंटेन नहीं होता है। ये खाली शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स, फटाफट हो जाता है, खाली फास्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेट वर्थ मेथड, व्हिच यू आर गोइंग टू डू इन 11th स्टैंडर्ड। नेट वर्थ मेथड में वी विल ट्राई टू कैलकुलेट हिज प्रॉफिट्स विद द हेल्प ऑफ कैपिटल्स। वी विल ट्राई टू कैलकुलेट हिज प्रॉफिट्स विद द हेल्प ऑफ कैपिटल्स। अब देखिए, नेट वर्थ का मतलब क्या होता है पता है? ओनर का पैसा। ओनर का पैसा कितना बिजनेस में? दिस इज नथिंग बट कैपिटल ओनली। नेट वर्थ इज नथिंग बट ओनर्स कैपिटल। तो कैपिटल की मदद से हम उसके प्रॉफिट्स निकालते हैं। अब क्यों कैपिटल की मदद से निकालते हैं? तो एक थियोरिटिकल अजम्पशन हम फॉलो करते हैं फॉर दिस चैप्टर, सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बोला सिंगल एंट्री का। सिंगल एंट्री सिस्टम कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं। सिंगल एंट्री का मतलब क्या है? whenever you divert from a double entry, when you don't follow double entry, it is said to be single entry. किसी ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट दिया, किसी का दोनों दिया, किसी का दोनों स्किप कर दिया, दैट इज व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो उसका है नहीं। बट when you are doing theory, अभी 11th में आप थियोरी कर रहे हो, थियोरेटिकल सम्स कर रहे हो, उसके लिए आप एक अजम्पशन फॉलो करो। ओके, थियोरेटिकल अजम्पशन है। जैसे वो पता है ड्राइंग्स का मैंने अजम्पशन दिया था, assume it is 6 months evenly spread throughout the year. प्रैक्टिकली शायद इवनली ना भी हो, मंथ वाइज 3 महीने का एक बार हो, 6 महीने में एक बार, you don't know, you might have been given the dates, but if nothing is given, you take it for 6 months random। वैसे ही सिंगल एंट्री चैप्टर के लिए एक अजम्पशन फॉलो होता है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछते हैं। क्या अजम्पशन है
यू अज्यूम दैट जो बंदा जिसने कच्चे अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, बराबर अकाउंट्स नहीं किए, सिंगल एंट्री पे किए हैं, उसने कैश बैंक और पर्सनल अकाउंट्स ये मेंटेन किया हुआ है. मतलब पर्सनल बोले तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. तो उसने कैश बैंक मेंटेन किया है बराबर से, और उसने डेटर क्रेडिटर मेंटेन किया. बस कैश बैंक क्यों? क्योंकि बंदा पासबुक से सब डेटा उठा सकता है, तो आपको मेंटेन नहीं करना है, बैंक ही कर रहा है वो सब. तो एक तो उसने कैश बैंक अकाउंट मेंटेन किया, और दूसरा उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस में किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, रोलिंग चलाने के लिए. तो बंदे ने 2 अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं अच्छे से, दैट इज कैश बैंक एंड डेटर क्रेडिटर अकाउंट. ये आपका थियोरेटिकल अजम्पशन है. प्रैक्टिकली कोई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके पास कोई बंदा अकाउंट लेके आ रहा है, आप उसको ऐसा नहीं बोलेगा अरे तूने तो सिंगल एंट्री किया, तूने तो कैश बैंक मेंटेन नहीं किया. वो बोलेगा क्या होता है सिंगल एंट्री का मतलब कच्चा अकाउंट. तो शायद प्रैक्टिकली कुछ मेंटेन हो, शायद ना भी हो, उसमें शायद कुछ और भी मेंटेन किया हो, यू डोंट नो. बट थ्योरी के लिए आप अज्यूम करते हो कि वो बंदे ने कैश बैंक और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किया हुआ है अच्छे से, सिर्फ यही मेंटेन किया ना. उसने कोई एक्सपेंस अकाउंट, वैसे 4 होते हैं ना, एक्सपेंस, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज. उसने एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन नहीं किया, उसने इनकम अकाउंट मेंटेन नहीं किया, उसने रिमेनिंग एसेट्स भी मेंटेन नहीं किया और रिमेनिंग लायबिलिटीज भी मेंटेन नहीं किया. सिर्फ खाली क्या मेंटेन किया? कैश बैंक और पर्सनल अकाउंट्स. बस इतना डेटा उसने उठा के आपको दे दिया, बोला मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट. तो 2 तरीके, एक होता है कन्वर्जन, जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, कन्वर्ट एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ कैश बैंक, विद द हेल्प ऑफ पासबुक, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू डबल एंट्री, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स एंड कन्वर्ट. दूसरा मेथड आप फॉलो करने वाले हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेट वर्थ मेथड. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेट वर्थ मेथड. ओके, नेट वर्थ मेथड में मैंने आपको क्या बोला? विल ट्राई टू कैलकुलेट हिज प्रॉफिट्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कैपिटल. लेकिन बंदे ने कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया क्या? क्या मेंटेन किया? कैश बैंक को बोला ये डेटर, ये क्रेडिट है, ये कैश बैंक, ढूंढ मेरा प्रॉफिट. आपको 3 अकाउंट चिपका दिए, आपको बोला ढूंढ मेरा प्रॉफिट. अभी आप ढूंढ पाओगे, कैसे ढूंढ पाओगे? विद द हेल्प ऑफ हिज कैपिटल. लेकिन कैपिटल तो है नहीं. लेकिन सपोज यू नो दिस फाइनल अकाउंट स्टफ, लायबिलिटी है, ये आपका ओपनिंग कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट इज आउटर कॉलम का कैपिटल. सपोज आई टेल यू कैपिटल एट द बिगिनिंग वाज 50,000, drawings were 10,000 and closing capital is 70,000, or say let's say 70,000. Can you tell me what is his net profit? 30,000. आपने कैसे ढूंढा? सिंपल बैलेंसिंग फिगर उठा लिया सीधा. आपके पास दोनों कैपिटल्स है, 50 माइनस 10 होता है 40, 40 का 70 कैसे हो गया? 30,000 का प्रॉफिट. करेक्ट? इसी को बोलते हैं नेटवर्थ. दिस इज नेटवर्थ. आपके पास ये डेटा अवेलेबल हो गया तो आप प्रॉफिट ढूंढ पाते हो आराम से. यही होता है नेटवर्थ. नेटवर्थ मेथड में आप दोनों कैपिटल्स की मदद से उसका प्रॉफिट ढूंढ लेते हो. नाउ समटाइम्स व्हाट डू दे डू इज दे हैव सम एडिशनल कैपिटल. मतलब उसने साल के बीच में और कैपिटल डाला, तो आप ऐड कर दोगे. 50 था, 10,000 ड्रॉइंग्स किया और 30,000 उसने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल डाला, इंट्रोड्यूस किया, और फाइनली उसका क्लोजिंग कैपिटल हो गया 90,000. अब आपका प्रॉफिट कितना है? 50 माइनस 10 40, 40 प्लस 30 70, 70 का 90 कैसे हो गया? 20,000 का आपका प्रॉफिट है. समझ में आया? या अगर मैं ड्रॉइंग्स यहाँ पे 15,000 कर दूं, अब 35 प्लस 30 65 है. 65 है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000 हुआ, क्योंकि 65 प्लस 25 gives me 90. सपोज मैं उसका एडिशनल कैपिटल 40,000 कर दूं. अब 50 माइनस 35 प्लस 40 इज 75. 75 का 90 कैसे हुआ? 15,000 रुपया प्रॉफिट. बेसिकली आपको ये डेटा पता है तो प्रॉफिट्स आराम से ढूंढ सकते हैं. तो इसी को कहा जाता है नेटवर्थ मेथड. यही करते हो आप in the net worth method to calculate this guy's profit. Now the problem is we do not have his capital, or do we have his capital? No, we do not have. अच्छा, तो we'll have to find out first his capital.
राइट। अब कैपिटल कैसे ढूंढा जाए, और एक कैपिटल चाहिए कि दो कैपिटल चाहिए? दो चाहिए, वन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड वन एट द एंड ऑफ द ईयर। यू नीड टू कैपिटल्स। एक कैपिटल से तो काम बनने वाला नहीं है, आपको दो कैपिटल चाहिए। तो अभी कैपिटल कैसे ढूंढे मुझे बताओ। मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक बैलेंस शीट दूं और आपको बोलूं कि एसेट्स आर लेट से 5 लाख, सब एसेट मिला के 5 लाख रुपए, ये टोटल 5 लाख है, ओके। और लोन्स वगैरह, लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, तो ये कैपिटल कितना होगा? टोटल तो सेम है, तो 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2 लाख हुआ। कैसे ढूंढा आपने कैपिटल? एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज कैपिटल, बिकॉज टोटल ऑफ एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो अगर आपके पास एसेट और लायबिलिटी आ जाए तो आप कैपिटल ढूंढ पाओगे इजीली। अच्छा, मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर के एसेट लायबिलिटी दूं तो बिगिनिंग कैपिटल मिल जाएगा, और एंड ऑफ द ईयर के एसेट लायबिलिटी दूं तो एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज एसेट और लायबिलिटी तो आपके पास नहीं है, लेकिन कुछ डेटा है जैसे कि कैश बैंक और पर्सनल लेटर क्रेडिटर, वो आप लिख दो, बराबर है। दूसरा कैश बैंक मतलब पासबुक, तो पासबुक में उसने कैश बैंक मेंटेन किया है, तो आपको ये मोटा मोटी पता चल जाएगा कि उसने कितने कितने पेमेंट्स में क्या क्या एसेट्स खरीदे हैं। पेमेंट्स किया होगा उसने, अगर एसेट्स खरीदे होंगे तो। लायबिलिटीज लिया है, लोन्स लिया है, तो पैसा आया होगा रिसीट साइड पे। तो वही डेटा को उठा के यू विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम एसेट्स, जितने एसेट्स पॉसिबल है उतने ले लोगे, जितने लायबिलिटीज पॉसिबल है उतने उठा लोगे। अच्छा, कुछ नहीं पता तो आप उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढ लोगे। लेट से उसके कैश बैंक में मोटर कार का डेटा ही नहीं दिख रहा, उसने क्रेडिट पे खरीदा था और रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप उसके फैक्ट्री पे जाओगे, ऑफिस पे जाओगे, देखोगे मोटर कार पड़ी हुई है, आप एक एस्टिमेट निकाल लोगे कि ये गाड़ी 3 लाख की लग रही है, तो एक एस्टिमेट बेसिस पे आप उसका मोटर कार वैल्यू लिख लोगे 3 लाख रुपीज ओवर ईयर। तो आप कर क्या रहे हो? आप ये कर रहे हो कि इस डेटा में से जितना एसेट लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो आप उठा के बैलेंस शीट में डाल रहे हो, और जो एसेट लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है उसका आप अप्रोक्सीमेशन ढूंढ रहे हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हो। एक्यूरेट नहीं होगी, बिल्स नहीं है समझो, अकाउंट्स तो उसने वैसे भी मेंटेन नहीं किए, तो एक अंदाजे से, जैसे कि फर्नीचर है, ये बेंचेस है, बनाए थे तब लाख रुपए के थे, अब थोड़ा डेप्रीसिएशन हो गया, 6-7 साल हो गया, तो आज की तारीख में कितने के होंगे? तो 50-60 हजार के होंगे, तो वो वैल्यू आप डाल दोगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आया? तो एक अप्रोक्सीमेट बेसिस पे आप बैलेंस शीट रेडी कर लोगे, नॉट द एक्यूरेट वन, इट इज एन अप्रोक्स बैलेंस शीट, इट इज एन अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट। कैसे बनाई मैंने बैलेंस शीट, समझ आया? आई मेड द बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कैश बुक डेटा and some approximations for assets and liabilities. Now once I have got the approximate value of assets and liabilities, I'll get my capital, but will it be accurate or approximate? अगर आप डबल एंट्री करो तो एक्यूरेट ही है, सब डॉक्यूमेंट्स रेडी है, इसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल, परफेक्ट है। ये परफेक्ट वाला नहीं है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत हो, अप्रोक्सीमेट तो अप्रोक्सीमेट। टैक्स में 19-20, बट चालू तो हो भरने का, सिस्टम तो शुरू हो, अगले साल से करे हो। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज की मदद से आप क्या ढूंढ पाओगे? उसका कैपिटल, और एक नहीं दो, वन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वन एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड वंस यू गेट द कैपिटल, वंस यू गेट द कैपिटल्स, एंड इफ आई गिव यू दिस एडिशनल इन्फो, ये कहां से मिल जाएगा? ये भी कैश बुक से मिल जाएगा, क्योंकि कैश बुक में हम लिखते हो बाय ड्रॉइंग्स पेमेंट साइड पे, तो ड्रॉइंग्स का डेटा, एडिशनल कैपिटल तो 2 कैपिटल लिखते हो, वो भी मिल जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आराम से मिल सकता। This is called as net worth method. तो net worth method होता क्या है? Net worth method होता है कि जिस बंदे ने सिंगल एंट्री मेंटेन किया है उसका प्रॉफिट हम ढूंढ रहे हैं with the help of capitals. We are trying to find out his profits with the help of his capitals. Now how the hell would we calculate capitals? वो भी नहीं है, उसने asset liability भी मेंटेन नहीं किए,
तो हम ढूंढना चाहेंगे, हम ढूंढने की ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कैश बैंक डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ सम अप्रोक्सीमेशंस. So we'll try to calculate the value of his assets and liabilities. And how many? One or two? One at the beginning, one at the end. और दोनों asset minus liability से क्या मिल जाएगा उसका capital. Once you get his capital, you'll be able to find out his net profit. तो जब आप ये asset और liability ढूंढोगे और लिखोगे, are these accurate values or approximate values? तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में फर्क क्या है? बैलेंस शीट इज एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू. दैट इज द ओनली डिफरेंस. नाम में यही फर्क है. ये अप्रोक्स होता है और बैलेंस शीट जो होता है वो एग्जैक्ट होता है. समझ में आया? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर प्रॉफिट ही ढूंढना है तो इनकम माइनस एक्सपेंस करके क्यों नहीं ढूंढते जैसे नॉर्मली ढूंढते हो? Why are we not calculating his profit with the help of all incomes and all expenses? जैसे आप नॉर्मली ट्रेडिंग पीएनएल में इनकम माइनस एक्सपेंस ढूंढ सकते हो, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? कोई डैम इनकम, कोई डैम एक्सपेंस का अकाउंट उसने मेंटेन क्या मेंटेन किया? कैश बैंक और पोस्टल. तो क्या इजी पड़ेगा? ये मेथड इजी पड़ेगा कि इनकम एक्सपेंस वाला? ये मेथड. क्योंकि इनकम एक्सपेंस वाला तो बहुत लंबा कट मारना पड़ेगा, हर एक छोटू इनकम और एक्सपेंस को पिन पॉइंट करके ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको ढूंढने प्रॉफिट मिलेगा. ये क्या आपको कैपिटल्स मिल गया, सीधा डिफरेंस ऑफ कैपिटल इज नेट प्रॉफिट. उल्टा अप्रोच दे रहे हो, समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट अप्रोच दे रहे हो. रादर देन गोइंग बाय ट्रेडिंग पीएनएल अप्रोच, यू आर सिंपली टेकिंग. आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, आप ट्रेडिंग से जीपी ढूंढते हो, वो जाता है पीएनएल में, वहां से नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाता है ना. इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप एसेट साइड का टोटल करो, टैली करते वक्त जीपी मत ढूंढो, एनपी मत ढूंढो, एसेट साइड का टोटल करो, उसको दोनों तरफ लिख दो, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. क्योंकि एसेट साइड का टोटल अगर दोनों बाजू लिखोगे तो टोटल मिल गया आपको. टोटल में से बाकी लायबिलिटी सबट्रैक्ट कर लो तो आउटर कॉलम कैपिटल मिल जाएगा. आउटर कॉलम कैपिटल मिल गया, इनर कॉलम कैपिटल है ड्रॉइंग से आपके पास, तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. नेट प्रॉफिट को डालो पीएनएल में तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा ट्रेडिंग में. ऐसे भी जा सकते हो ना उल्टे. आंसर विल बी द सेम. टैली करने के दो तरीके, एक सीधा जीपी एनपी गोज टू बैलेंस शीट एंड एक टैलीज. दूसरा होता है रिवर्स तरीका, एसेट का टोटल दोनों बाजू लिखा, वहां से आउटर कॉलम कैपिटल मिला, आउटर कॉलम कैपिटल पता है, इनर कॉलम कैपिटल पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये मिल जाएगा ना नेट प्रॉफिट. उसको डालो पीएनएल में, पीएनएल को करो बंद, डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, वो जीपी होगा, उसको डालो